آئے کلام مقدس کھولتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور پھر یسوع مسیح کی باتیں شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ مقدس مرکز کی انجیل اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 9ویں آیت۔ مقدس مرکز کی انجیل ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کی، اس نے اپنے خادموں کو استعمال کیا، 4 باب اور اس کی 9ویں آیت نکال لیں تو کہے آمین۔ اچھا ہے کہ 8ویں پڑھتے ہوئے 9ویں پہ جائیں گے، زیادہ انجوائے کریں گے۔ 8ویں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اور کچھ اچھی زمین پر کیا اور وہ اگا اور بڑھ کر پھلا، اور کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لائے۔ پھر اس نے کہا، کس نے کہا؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے۔ پھر اس نے کہا جس کے کان ہو۔ اکثر ہم نے بچپن سے میں بھی سنتا ہے، کبھی گھبرانا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سنانے والے نے، بیان کرنے والے نے ایسے نہیں، لیکن میری سمجھی شاید یہاں تک نہیں۔ جس کے سننے، جس کے کان ہو وہ سن لے، جس کے کان ہو وہ سن لے۔ لیکن جس کے، یسوع مسیح یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ جس کے سننے کے کان ہو وہ سن۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس چیپٹر میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں پھر آپ کے پاس اگلے پیج پہ میرے ساتھ آئیے گا۔ اگلے پیج پہ بھی یہ آیت ہمیں ملے گی، اور وہ دیکھیے گا 23ویں آیت۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔ 9ویں آیت میں بھی کیا ہے؟ اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو کیا کرے؟ سن لے۔ اور 23ویں آیت میں پھر یسوع مسیح یہی بات کہتے ہیں، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو پوچھے اپنے آپ سے کہ کون سے والے کان ہیں، اور پھر اچھا ہے کہ اپنے دائیں والے سے کہیں میرے سننے کے کان ہیں، بھائی آپ کے کیسے ہیں، بہن آپ کے کیسے ہیں۔ Praise the Lord, Amen, Hallelujah, Hallelujah۔ لیفٹ والے سے بھی کہیں، اب نہیں ہے تو آئے مان لیتے ہیں سننے کے کان۔ Praise the Lord, Amen۔ خدا دینے کے لیے تیار ہے۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ جی، ایک ندی ہے دھارا۔ ہاں، کتنی ندی ہے؟ پردیش کے شروع میں 4 ہے، یاد رکھیے۔ پردیش پہلے وہاں پڑھتے ہیں جب تخلیق ہوئی تو کتنی؟ 4 ندی۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں مان لانے والے کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔ لیکن یہاں یاد رکھیے گا ایک ندی ہے دھارا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ندی وہ یسوع مسیح ہے، وہ خون جو کوہ کلوری پر بہا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ آمین، ہاللویا۔ میرے ساتھ یہ جلدی سے ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر آپ آج شہوہ یری کو فوکس کر رہے ہیں تو پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ کہ پرانے عہد نامہ میں وہ یہوہ جس نے اپنے آپ کو 7 صفات کے ساتھ مختلف 7 اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا۔ پہلا یہوہ یری مہیا کرنے والا، دوسرا یہوہ، ذرا چلے یہ بھی چھوٹا سا ٹیسٹ ہی سے، پریز دی لارڈ۔ لیکن پلیز یہوہ یری
दूसरी दफा उसी यहोवा ने, यहोवा चेंज नहीं हुआ, पहली सिर्फ अपनी इंट्रोड्यूस करवाई, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया किस पे? अपने बंदा हमारे बाप इब्राहिम पर, यहोवा यारी मुहैया करने वाला। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे पहले जब उसने इंट्रोड्यूस करवाया है, आज हम यहोवा यारी गाड़ी, रिश्ता, फानी चीजें सब कुछ वो देना चाहता है, देने पे कादर है, लेकिन उसके दिल के अंदर झांक कर देखे कि जब उसने अपने आप को यहोवा यारी मुतारफ करवाया तो क्या दिया था, क्या दिया, क्या देकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। वहां मेंढे के सींग किस में फंसे हुए? झाड़ियों में। और याद रखिएगा कि वो झाड़ियां कोई चीज नहीं थी उस मेंढे के लिए। वो यूं करे, उसके सींगों के अंदर इतनी पावर और कुदरत है कि वो यूं करे तो वो झाड़ियां, जिन झाड़ियों में वो था, वो झाड़ियां कोई मायने नहीं रखती उसके लिए, वो घास की माने गए। लेकिन हमारे सीखने के लिए क्या है? वो झाड़ियां मेंढे को कैद नहीं कर सकती थी। वो तो रज़ाकाराना तौर पर अपनी खुशी से उन झाड़ियों में अपने आप को सरेंडर किए बैठा था, जो मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का मसीह है। उसने खुशी से अपनी जान दी। आमीन, हालेलुया। सो मौजूद आज सुनने पे बात करनी, लेकिन याद रखिए समेटते जाए। अगर समेटने वाले हैं तो याद रखिएगा काल पड़ने वाला है। अगर जिसने वाफर में आज कलाम की बारिश बरसती है तो वक्त को गनीमत जाने और समेट ले, ताकि काल के अय्याम में आपके पास वाफर हो। यहोवा यरी, और मेरी दुआ है कि हम समझे, जिसने यहोवा यरी जैसे ही पाया, अगला उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, यहोवा राफे, शाफी, रूह बदन जान की शिफा, गुनाहों की माफी प्रोड्यूस करती है। अगला ही स्टेज जो है वो क्या है? शिफा, रूह बदन जान। और तीसरी फतह से बढ़कर गलबा, यहोवा नसी, अमालेकियों की जंग है। जो जिस्म फिर जब हम रूह से पैदा होते हैं तो जिस्म जंग की हालत में होता है, लेकिन वही है जो हमारी रूह को अपनी रूह के वसीला से जिस्मानी ख्वाहिशों पर और उस पर फतह से बढ़कर यहोवा। तीसरा क्या है? यहोवा नसी। और चौथा, प्रेज़ द लॉर्ड। हां जी, यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? राह, कौन सी राह? यहां से दुल्हन गांव जाने की, या यहां से मुल्तान जाने की, या आसमान पर जाने की? जब यीशु मसीह फरमाते हैं कि राह, तो किस राह की बात करते हैं? मेरे भाई गांव की बात नहीं कर रहे हो, आपके भाई गांव की बात, शहर की बात नहीं कर रहे, वो तो आसमान की बात कर रहे हैं। तो यीशु मसीह क्या फरमा रहे? राह, आसमान की राह और हक, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता, जो आसमान से वो कादिर मुतलक हक ताला, राह आसमान की, हक आसमान की बात है। जिंदगी, मैं फिर किसी एक बात की तरफ, ना वो हैवानों की जिंदगी की बात कर रहे हैं, ना वो इंसानों की जिंदगी की बात कर रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा, ना पौधों की, ना हैवानों की, और ना इंसानों की। जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं राह, हक और जिंदगी, तो वो जिंदगी खुद खुदा की जिंदगी की बात कर रहे हैं। आज मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्री है, अगर यीशु मसीह की बातों में मेरी दिलचस्पी नहीं, तो मेरी आसमान की राह की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बहुत बड़ा साइन है। मेरा उस जिंदगी में जो खुदावंद की जिंदगी है, आसमानी, मेरे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो याद रखिएगा, दरमियान में कोई हालत नहीं है, दरमियान में कोई हालत, कोई ठिकाना नहीं है। अगर मेरी उस राह में जो आसमान की है दिलचस्पी नहीं है, तो दूसरी की मुझे दिलचस्पी लूं या ना लूं, वो राह मेरी मुंतज़िर है, क्योंकि वो राह मैं मां के पेट से लेकर पैदा हुआ हूं। उसको मुझे जानने की, समझने की कोई जरूरत नहीं है।
जिस राह को लेकर मैं पैदा हुआ हूँ उसकी जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी आंखें बंद होंगी और मैं सीधा जहन्नम में हूँ। अगर यीशु की बातों में दिलचस्पी नहीं तो मौत की राह तो मैंने खुद ये कंफर्म है कि फिर मैं अगर उस राह पर नहीं तो फिर मैं मौत की राह, और अगर मैं जिंदगी की राह पर हूं तो प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी मुबारक बात है। लेकिन ये नई पैदाइश की खूबसूरत ये जो सात सफात है, ये नई पैदाइश और एक मसीह फतहमंद जिंदगी है। ये हमारी प्रेज़ द लॉर्ड गुनाहों की माफी बने के वसीला से अगले ही लेवल पे फौरन ही जो आपके अगर आपने उस गुनाहों की माफी और अपनी जिंदगी खुदावंद को दी, अगले ही में प्रेज़ अगले लम्हे अगले साल की बात में नहीं कर रहा। रूह बदन जान की शिफा यहोवा राफे भी वहीं पर है और यहोवा नसी भी जो जिस्मानी कामों को रूह के वसीला से मिटाने के कादिर है। और चौथा प्रेज़ द लॉर्ड में अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। चौथी उसकी सफात के यहोवा शलोम, प्रेज़ द लॉर्ड। और पांचवा फिर वो रिश्ता है कि आज से खुदावंद आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, आप मेरे चौपान हैं और मैं आपकी भेड़ हूँ। सो पांचवी सफात उसकी यहोवा रोई, खुदावंद मेरा चौपान है। अच्छा मदद कर दे मुझे भी बोल ये Praise the Lord, God bless you. मुकद्दस यिर्मयाह के सहीफों में आप पढ़ेंगे खुदावंद हमारी रास्तबाजी है, हमारे नेक अमाल हमारे वो काम हमारी रास्तबाजी नहीं, मसीह खुदावंद हमारी रास्तबाजी है। और अब सवाल ये है कि ये छठे नंबर पर क्यों हम शुक्रगुजार हैं कि ये छठे नंबर पर ये जो रास्तबाजी ये हमारी उठाए जाने वाली है। रास्तबाज जिस दिन हम यीशु मसीह के कफारे झूठने पर ईमान लाए उसी दिन उसने हमें रास्तबाज ठहराया। लेकिन यहाँ आकर और सातवां फाइनल जो है वो क्या है, यहोवा शामिल, यानी वो वहां पर सो प्रेज़ द लॉर्ड जिसने हमें यहाँ पर मखलसी दिलाई वो वहां पर भी हमारा मुंतज़िर है। जो नूह की मर्द खुदा नूह की कश्ती में हमने क्या देखा कि जब अंदर बुला रहा तो खुद अंदर है, मेरे पास कश्ती में है। ये क्या है मसीही जिंदगी, जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो वो हमें रिसीव करता है और जब हम इस बदन से मखलसी पाएंगे तो आसमान पर वो हमें रिसीव करता है। हालेलुया, यहोवा शामिल, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज कितनी खुशी की बात है, दुख की बात है कि अगर इस यहोवा खुदावंद ने जो यीशु के रूप में आया, अगर मेरा दिल उससे नहीं लगा तो टकरे मारता फिर रहा हो, लेकिन अगर मेरा उससे दिल लग गया तो आज वो मजमुआ मेरे अंदर है, मेरे बाहर नहीं। उस वक्त वो साथ है, आज वो मेरे अंदर है। आज से जितनी सफात है वो मेरे अंदर से बाहर को निकलती है। सवाल मुझसे है, आपसे है कि क्या उसे वाकई ही उससे दिल लगाया है, आज उसे अंदर याद रखिएगा। सबसे हम शुक्रगुजार हैं, यहाँ पर भी मेरे साथ रहिएगा। बहुत सारे बहन भाई शायद बाइबल इसको भी मैं रिपीट कर दूं, शायद इसलिए ना पढ़ते हो कि उसने कहा मैं सारी बातें तुम्हें रूह ने जिम्मे लिया है कि मैं सारी बातें तुम्हें याद दिलाऊंगा। हरगिज़ नहीं, आज के दिन के लिए नहीं, याद रखिएगा। वो सब कुछ करने पे कादिर है, लेकिन उसके असूल है। ये आज के दिन के लिए नहीं है कि आप सोचें कि आज मैं बाइबल खोलूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, मैं बाहर निकलूंगा वो मुझे याद नहीं। ये याद रखिएगा, तब तक मुकद्दस मलाकी तक बाइबल लिखी थी और यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत के दौरान अपने शागिर्दों से, अपने रसूलों से ये बातें कर रहे हैं कि आज तुम्हें ठीक तौर से समझ भी नहीं आएगी जो समझाना चाहता हूँ, इसलिए ये बातें मैं करता चाहता हूँ। तुम इसे गौर से सुनते जाओ, अंदर रखते जाओ। वक्त आएगा
जब मैं दूसरा मददगार तुम्हारे पास भेजूंगा और वो ये सारी बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहकर कही है, ये बातें तुम्हें याद दिलाएगा और फिर तुम क्या करना, इन तमाम बातों को कलम बंद कर लेना। आमीन। कितनों को समझ आई कि उन अय्याम में यीशु मसीह अपने शागिर्दों से, अपने रसूलों से इस वे में बात कर रहे हैं कि ये सारी बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहकर कही, रूल कुद्दस तुम्हें याद दिलाएगा, और जब याद दिलाएगा तो फिर उसकी हदायत में तुम ये कलम बंद करते रह जाना, जो तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बाद जब तक मैं दोबारा आ नहीं जाता हर एक की रहनुमाई और बरकत के लिए होंगे। आमीन। सो कितने हैं जो आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इस अहमियत को समझेंगे कि आज मैं इस तरह इंतजार नहीं कर सकता कि मुझे इसे खोलने की जरूरत नहीं, मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, वो रूल कुद्दस है ना, वो मुझे याद नहीं। आज आप इसे पढ़ेंगे, इस पर गौर करेंगे और वो रूल कुद्दस समझने में मदद फरमाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। ईमानदार जो है ये रूहानी तौर पर गैर निजाती याफ्ता, ईमान लाने से पहले अंधा होता है, लेकिन यीशु मसीह पर जब ईमान लाता है तो नूर अंदर आता है और तारीकी नूर में बदल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्या सवाल है कि ईमानदार जो नबीना से बीना हुआ वो दोबारा नबीना हो सकता है? तो जवाब है यस। आज इन अय्याम में खुदावंद नहीं चाहते कि हम किसी बात में भी कहीं गलती पर रहकर कोई बड़ा नुकसान न कर बैठे। कितने हैं जो आज सुबह दिल बड़ा करके इसे बाइबल मुकद्दस में से देखना चाहते हैं ताकि अलर्ट हो जाए, अलर्ट हो जाए, खबरदार हो जाए। जो अपने साथ सिंसियर है। एक दिन एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे दिल में आ रही, वो क्या है कि हम खूबसूरत दुआ है कि खुदावंद रहम कर दे, खुदावंद रहम कर दे। तो मैंने ऐसी आवाज सुनी कि मैंने तो बहुत अरसा पहले तुम पर रहम कर दिया है, अब अच्छा है कि इंसान अपने हाल पे खुद रहम कर ले। और ये बात ठीक है, मैं आपको बता दूं, खुदावंद ने रहम 2000 साल पहले कोहे कलवरी पर कर दिया है। अब अगर आज वो रहम किसी की जिंदगी में नहीं है तो वो खुदावंद की मर्जी नहीं, उस इंसान की अपनी मर्जी है कि वो अपने हाल पे रहम नहीं कर रहा, खुदावंद ने रहम कर दिया है। अब आज मेरे साथ एक आयत देखिएगा, मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत, और निकाल ले तो कहें आमीन। और जिसमें ये बातें ना हो, जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है। अंधा क्यों हुआ? ईमान लाने के बाद वो अंधा क्यों हुआ? ये बात जो हम कर रहे हैं ये ईमानदार की कर रहे हैं, ये गैर निजाती याफ्ता की नहीं कर रहे, ईमानदार की है जो अंधे से बीना हुआ और फिर अंधा हुआ। तो ये कितने दुख की बात है। इसका मतलब ये है नबीना बीना हुआ और फिर नबीना हो गया, ये उस राह पर है। क्यों? सवाल ये है कि क्यों? हम शुक्रगुजार है कि उसने हमसे कुछ नहीं छिपाया, अपने कलाम में सारा कुछ लिखा हुआ। वो अंधा है और कोता नजर और अपने पहले
और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूला बैठा है। वो क्यों अंधा हुआ, क्यों कुता नजर हुआ? क्योंकि इसके पिछली आयत को जरूर पढ़े। हम देखें, हम खुदावंद में जो कर सकते हैं, आप लोगों से दस्त बस्ता में कितने बहन भाई जानते हैं कि एक बड़ा मुफाद है आप लोगों के ये सारे करने से, हमें बड़ा मुफाद है। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि हम, बेशक हमें बहुत बड़ा मुफाद है, लेकिन हम आसमानी मुफाद के लिए और आपसे मोहब्बत, अगर मसीह की मोहब्बत हमारे दिल में है तो वो फिर हमें मजबूर करती है कि हम दूसरों को भी बच जाने में उनके मुआवन हूं, मददगार हूं। जी क्या लिखे, क्यों वो दोबारा अंधे हुए? क्यों दोबारा अंधा का लफ्ज़ हम यूज करते हैं? खुदावंद के रहम में बचे रहे। अगर कोई ईमानदार है और वो अंधा हुआ तो क्यों हुआ? पहले गुनाहों को धोए जाने को भूल गया। क्या है इसका मतलब? वो मसीह के कलाम से दूर होता गया। वो कलाम जो उसे सुबह दोपहर शाम याद दिलाता है, कोई है जिसने तुझसे बेहद मोहब्बत की और करता है, उसने तेरे लिए सलीब पर अपना खून बहाया। इसलिए हमें हर लम्हा, हर सांस के साथ जब हम याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि उसने मेरे लिए क्या किया है। जरूरी है मेरे और आपके लिए। इसी से हम उसकी परस्तिश में बढ़ेंगे, इसी में हम उसकी शुक्रगुजारी में बढ़ेंगे, इसी में हम उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। जब हम इन तमाम बातों पर हमेशा दिल लगाए रखेंगे, अपनी सोचें, अपने ख्यालात, अपना गौर इसी पर रखेंगे, तो वो सलीब का पैगाम है। आज जो बात सुनने के हवाले से हुई, मेरे साथ रहिएगा। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। कहना वो जो चाहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुने और समझे। सुने और समझे। कितने बहन भाई जानते हैं कि यीशु मसीह, हाथ ना दिखाइएगा बेशक, मैं नहीं चाहता कि, कितने हैं, हो सकता है हम में से अक्सरियत हो जो ये समझती है कि यीशु मसीह तफसीलों में बातें इसलिए करते थे कि लोगों को समझ आए। ऐसा नहीं है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यीशु मसीह तमसीलों में बातें इसलिए नहीं करते थे कि लोगों को समझ आए। तमसीलों में इसलिए बातें करते थे कि लोगों को समझ ना आए। और जो समझना चाहते हैं वो पलट के राब्ता करें। जो नहीं समझना चाहते उन्होंने सुना और चले गए। और हो सकता है कि हम में से अक्सरियत ऐसी हो। जब मैं खुदावंद में आपको यकीन दिलाता हूं, हम में से अक्सरियत ऐसी है। जितना कलाम नाज़िल हुआ है, मैं खुदा का शुक्र करते हैं हम, बहुतों ने रसीव किया, लेकिन कई जिंदगियां आज भी ऐसी है, सुना बहुत है लेकिन गुजर गया ऊपर से। यीशु मसीह तमसीलों में बात करते ताकि जो समझना चाहते हैं वो पलट कर आए। तो क्या यीशु समझाना चाहते हैं? जवाब है यस। कायनात की मसरूफ तरीन हस्ती और कायनात की रिलैक्स हस्ती
जिसे कोई जल्दी नजर नहीं। यीशु मसीह की खिदमत में एक वाक्य के अलावा मैं फिर याद करा दूं, कोई जल्दी नहीं है, और वो जल्दी सिर्फ नजात के लिए है। ज़काई जल्द नीचे, यायर की बेटी मरने को है, यीशु मसीह को कोई जल्दी नहीं। कोई है जो आज यीशु मसीह का दीदार पाना चाहता है, तो यीशु मसीह को जल्दी है, सिर्फ अपना दीदार देने की नहीं, उसके साथ जाकर खाना खाने की भी। इसलिए यीशु मसीह इस तमसील के बारे में फरमाते हैं कि जिसे ये तमसील समझ ना आई, शागिर्दों से वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ये वाली तमसील ना समझ आई तो फिर तुम्हें कोई तमसील बाकी कैसे समझ आए। इसलिए यीशु मसीह, मेरे साथ रहिएगा, तमाम तमसीलों में से इस तमसील को फोकस करवाते हैं कि अगर बाकी तमसीलों को समझना चाहते हैं तो इस तमसील को समझे। और इस तमसील का ताल्लुक कतई तौर पर जमीनी किसी चीज से मुंसलिक नहीं है। ये जो तमसील है यीशु मसीह की, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, इसका जमीन की फानी किसी चीज के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इसका 100% जो है आसमान की बादशाही के साथ। लेकिन अगर आप बिजनेस को समझते हैं, कुछ भी, बहुत सारे बैठे हैं, अगर 1 रुपए के साथ 30 भी आ जाए तो घाटे का सौदा है। खुदावंद क्या बता रहे, मर्जी तेरी है सामने वाले, कि तू 1 के साथ 30 लेना चाहता है। अब फिर मेरे साथ रहिए, खुदारा सोच को पैसों में ना ले जाइएगा, इसका पैसों के साथ कोई तल्लक नहीं, दुनिया की किसी चीज के साथ कोई तल्लक नहीं है। लेकिन एक वो कैलकुलेशन जो है, मल्टीप्लाई, वो आप रूहानी को भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उसके साथ तल्लक कोई नहीं है। 1 के बदले में 30 मिले, क्या घाटे का सौदा है? मर्जी आपकी है। यीशु मसीह बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि तुझे 30 चाहिए तो 30 ले ले, 60 गुना चाहिए तो 1 के साथ कितने? 60। लेकिन अगर तू 1 के साथ 100 लेना चाहता है तो भी देने को तैयार हो। लेकिन ये 30, 60 और 100, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले 4 किस्म की जमीन है। देखना यह है कि मैं और आप किस जमीन का हिस्सा है। बीज बोने वाला एक ही है। बीज बोने वाले कितने हैं? एक। बीज कितनी किस्म का है? एक। बीज बोने वाले कितने हैं? एक। बीज कितनी किस्म का है? एक। जमीनें कितनी किस्म की है? 4। सो पहली जमीन कितना फल लाई? 0। पहली जमीन कितना फल लाई? 0। क्या बीज बोने वाला फर्क था? नहीं। बीज फर्क था? नहीं। जमीन फर्क थी। पहली जमीन कितना बीज फल लाई? 0। दूसरी जमीन कितना लाई? 0। तीसरी जमीन कितना लाई? 0। आज कुछ समझ आ रही? ये कोई पहली बार नहीं, ये तमसील को पहली बार सुनी, लेकिन हो सकता है समझ आ जाए। ईमानदारी से बताएं, आज कितनों को पहले समझते और कितनों को आज पहली बार समझ आ रही? क्योंकि मुझे खुद पहली बार समझ आ रही, तो मुझे कोई आर नहीं है मेरे कभी भी किसी को, क्योंकि ये मानना जो है ये तो बहुत बड़ी बरकत है जिससे हम अपनी इंसल्ट फील करते हैं।
इसलिए मैं अपने हम खिदमत भाइयों से भी बाज़ औक़ात कहता हूँ, जी आपको 30 साल पहले आपने जश्न मना लिया, मेरा आज जश्न मनाने का दिन है, इसलिए मुझे कोई गुस्सा ना करे। मुझ पे आज रिवील हुआ है, मुझ पे आज खुला है, मैंने आज समझा है, मेरा आज जश्न मनाने का दिन है, आप मुझे क्यों मना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको 30 साल पहले, और बाज़ औक़ात हमें कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन हम रिएक्ट ऐसा करते हैं कि हमें सब कुछ पहले से पता था। पहली जमीन कितना फल लाई? 0। दूसरी 0, तीसरी 0, चौथी, प्रेज़ द लॉर्ड। अब चौथी पे ये तीनों बातें चौथी जमीन पे है। चौथी कितना लाई? 30 गुना, प्रेज़ द लॉर्ड, 60 गुना और 100 गुना। ये फल एक ही जमीन में है, और वो चौथी वाली जिसे खुदावंद ने कहा वो अच्छी जमीन है। पहली तीनों कुछ नहीं लाई। ओके, अब अच्छी जमीन, मेरे साथ रहिएगा। बाइबल का तर्जुमा बाइबल में से करें। खुदावंद ने बनाया, खुदावंद ने देखा, खुदावंद ने कहा अच्छा है। खुदावंद ने कुछ बुरा नहीं बनाया। याद रखिएगा, कायनात की तख्लीक पहले बाब में पढ़ ले। जो कुछ बनाया, देखा, कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब इंसान को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। और यही सबब है, मेरे साथ रहिएगा, जब वो अच्छा है तो उसकी एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने खामद यहां बैठे हुए हैं, जरा हाथ दिखाएंगे जितने खामद बैठे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई जेकब हाथ उठाएं जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। भाई आप भी प्लीज। कितने जो खामद बैठे हैं यहाँ पे, वो भी जरा गौर से सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो बहुत अच्छा है तो पता उसने क्या किया? उसने वही बोला जो खुदावंद बोलते, खुदावंद चाहते हैं। जैसे ही उसकी पसली में से औरत बनाकर लाए तो अभी वो बहुत अच्छा है। तो पता क्या कहते हैं? खुदावंद ने उसे कुछ नहीं कहा, उसके सामने लाकर, जैसे ही उसके सामने लाए तो कहता है ओहो, आश्चर्य कर उठा जनाब। उसको किसी प्रीस्ट ने, किसी पादरी ने, खुदावंद ने भी नहीं कहा कि तू कुछ कह, सिर्फ उसके सामने लाए। लेकिन चूंकि वो बहुत अच्छा है, खुदावंद की रूह उसके अंदर है, इसलिए वो वही बोलता है जो खुदावंद चाहते हैं। तो खुद ही कहने लगा, ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी, ये तो मेरे गोश्त में से गोश्त। और वो निकाह हो रहा था। याद रखिएगा, आज निकाह इसलिए, वो निकाह आज इसलिए नहीं होता, आज वो शादियां इसलिए कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि आज तो किसी के कहने पे बोलते हैं। आज किसी के कहने पे बोलते हैं। पादरी साहब जो बोलते हैं हम उसके पीछे पीछे बोलते हैं। और आज हो सकता है कि एक नए खूबसूरत निकाह में आपकी 30 साल पहले शादी हुई हो, लेकिन वो निकाह आज आपका हो जो आगे एक खूबसूरत कामयाब जिंदगी हो। कि उस वक्त आपने पास्टर के कहने पे कहा हो, लेकिन आज जब आपको समझ आई तो आप आज खुदावंद के हजूर में कहते हैं कि हाँ, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। तो यकीन माने कि आज एक इंकलाब बर्पा हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं देखा वो आज से देखेंगे। लेकिन जब वो खुदावंद के कलाम को उसने रद्द किया और बुरे के कलाम का यकीन किया तो वो अच्छे से बुरा हो गया। याद रखिएगा, वो जमीन अच्छी ना रही, क्योंकि ये जमीन की जो बात, ये इंसान के दिल की बात हो रही है। यीशु मसीह खुद बीज बोने वाले हैं, और बीज का हम बात करते कलाम। प्रेज द लॉर्ड। क्या कोहे सीना पर जो 10 अहकाम आए, बल्कि मैं थे नहीं, कोहे सीना पर से 10 अहकाम जो आए, माजी और प्रेजेंट, क्या वो खुदा का कलाम नहीं है?
सो यहां मसीह जो बात कर रहे हैं, पहली बात हमने ये देखना है कि वो फानी किसी चीज की बात नहीं कर रहे, वो कलाम की बात कर रहे हैं। अब अगली स्टेज हमने देखनी है कि वो कौन से कलाम की बात कर रहे हैं। 100% आसमान की बादशाही के कलाम की बात कर, 100% आसमान की बादशाही के कलाम की बात कर रहे हैं। इसलिए एक अच्छी जमीन है जो यीशु मसीह की बातों को सुनने में दिलचस्पी रखती है। वक्त नहीं, मजबूरी होती है। पहला किस पे गिरा? पहली जमीन कौन सी है? फुटपाथ, राह किनारे। दूसरी कौन सी है? पथरीली जमीन। तीसरी कौन सी है? झाड़ियों वाली। और चौथी अच्छी जमीन। हम जरूर खुदा के फजल से इस जमीन के बारे में जरूर बात करेंगे कि खुदावंद का रूह हमें क्या सिखाता है। ये पहली, दूसरी, तीसरी, लेकिन चौथी अच्छी जमीन कौन सी है? जो मसीह के कलाम जब उस तक पहुंचता है तो उसे अगर समझ उस वक्त नहीं भी आती तो वो उसको ऊपर से नहीं गुजार देता, बल्कि उसकी दिलचस्पी है दोबारा यीशु के पास आने में, उन बातों को समझने के लिए। कहां लिखा है बाइबल में? शागिर्द भी और भीड़ भी इकट्ठे हैं। जब यीशु मसीह ने यह तमसील बयान की तो सारे इकट्ठे हैं। भीड़ चली गई। यहां एक बात मैंने बीच में की, उसको मुकम्मल कर ले कि कायनात की मसरूफ तरीन हस्ती और कायनात में सबसे रिलैक्स, इजी, भीड़ से बात करने के लिए वक्त है। शागिर्दों से अलैदगी, तन्हाई में बात करने के लिए वक्त है। लाजर की बेटी मरने को है, वक्त है। रास्ते में 12 साल से बीमार औरत ने छुआ है, उसके लिए भी वक्त है। यह है मेरे और आपके खुदावंद जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। जब वो इस बदन में लिमिटेड है तो ऐसे है, तो आज जब रूह में अनलिमिटेड है तो कैसे है? कोई कह सकता है कि यीशु के पास वक्त नहीं। नहीं मेरी बहन, मेरी बेटी, आपके पास भाई वक्त नहीं है। दुख इस बात का है कि मेरे और आपके पास वक्त नहीं है। और मुबारक है वो जिसके पास यीशु को सुनने का वक्त है, यीशु की बातों को समझने के लिए वक्त है। वो मुबारक है। भीड़ चली गई। यीशु मसीह ने तमसील सुनाई तो भीड़ चली गई, लेकिन 12 यीशु के पास आ गए। इसमें बड़ी खूबसूरती से एक बहुत खूबसूरत एक तरतीब नजर आती है। यीशु मसीह से जो दिल लगाने वाले, वो यीशु मसीह की बातों को गौर से सुनते हैं, फिर सुनते हैं, और जब नहीं समझ आती तो अदम दिलचस्पी में नहीं जाते, बल्कि सवाल उनकी जिंदगी में पैदा होते हैं और वो यीशु के पास आते हैं उन सवालों को लेकर, जैसे ये आए हैं। ये सिर्फ 12 से तमसील शेयर नहीं कर रहे थे, बड़ी भीड़ भी साथ थी। भीड़ चली गई, शागिर्द जिनकी दिलचस्पी है वो यीशु के पास है। इसी सबब से बार बार हम आपसे पूछते रहते हैं कि भीड़ बनना चाहते हैं या शागिर्द बनना चाहते हैं। मुझसे और आपसे सवाल है कि भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी यीशु के पीछे नजर आती है, लेकिन शागिर्द यीशु के पास आते हैं।
सवाल ये याद रखिएगा, साइन है कि आप यीशु की बातों में दिलचस्पी रखते हैं। आपके अंदर सवाल पैदा होंगे, नहीं समझ आ रही, समझना चाहता हूं। आप खुदावंद के पास पलट कर आएंगे, उससे पूछेंगे, खुदाए रूल कुद्दस मदद फरमाए। खादम है आपके पास, वो आपकी रहनुमाई के लिए खुदावंद ने रखे हैं। अगली स्टेज याद रखिएगा, यीशु मसीह उन पर जाहिर कर देते हैं। चूंकि तुम दिल रखते हो, तुम सुनना चाहते हो, तुम समझना चाहते हो, इसलिए खुदा का तुम पर फजल होगा कि वो उस भेद को पढ़ लीजिएगा। लफ्ज भेद यूज किया यीशु मसीह ने कि ये भेद जो पुराने अहदनामे में मुकम्मल तौर से छिपा हुआ था, मुख्तलिफ जगहों पे छोटी छोटी झलक इसकी नजर आती है, लेकिन आसमान की बादशाही का भेद जो है उस वक्त किसी पर भी मुकम्मल तौर पर अया नहीं था, जो बेटे ने इस दुनिया में आकर हर ईमान लाने वाले पर जाहिर किया। उसका फजल, वो कहते हैं कि तुम मुबारक हो जो सुनना चाहते हो, जो समझना चाहते हो, इसलिए तुम्हें समझ, चूंकि तुम सुनना भी चाहते हो, तुम समझना भी चाहते हो, इसलिए तुम्हें समझ दे दी गई। बाप ने तुम पर रहम कर दिया कि समझ भी दे दी ताकि उसकी बातों को समझ पाए। बड़ी खूबसूरत ये बातें, चाहे इस चैप्टर को पढ़े गया, लेकिन आए तमसीलों की बात करते हैं तो एक तमसील हम भी शेयर करते हैं। अभी एक शख्स एक राह पे निकला, उसे 3 दरख्त नजर आए, उसने एक काट कर फेंक दिया, एक काट कर घर ले गया और एक पर चढ़कर फल तोड़ तोड़ कर बहुतों को देने लगा। कितनों को यह तमसील समझ आई? कोई बात नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी। कितनों को समझ नहीं आई, कोई बात नहीं। कितने हैं जो समझना चाहते हैं? समझना आना कोई गुनाह नहीं, समझने के लिए दिल ना रखना जरूर गुनाह है। कितने हैं जो समझना चाहते हैं? शख्स मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह है। एक डाकू है, काटा गया और फेंक दिया गया, और एक डाकू है, एक सलीब है जिस पे डाकू है, वो काटा गया और फेंक दिया गया। दूसरा दरख्त वो सलीब है जिस पर एक डाकू है, वो बचाया गया और साथ ले गया। और तीसरी वो सलीब है जिस पे वो खुद है, मसलूब होकर मेरे और आपके लिए रूह के फलों का इंतजाम कर। मुबारक है वो जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं।